So very good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm audible, na? I think today network issues. Sir, बीच बीच में देखना नेट कट जाएगा. लास्ट क्लास में कम से कम 3 टाइम्स जो है नेट जो है फ्लक्चुएट हो रहा है ज़्यादा. Okay, so better we can start. So last class I already started Floyd-Warshall algorithm. Today we'll complete. So we know what is the Floyd-Warshall algorithm. Anyone can explain briefly? Okay. So Floyd-Warshall algorithm. Here also we'll find out the shortest path, but all pair shortest path, not single source shortest path. Here all pair shortest path. That means last class I already show one example. We already started how to calculate or how to find out the shortest path. So here we apply Floyd-Warshall algorithm for constructing the shortest path. So the matrices here, how many matrices are there? So first of all I show the. Yes, we have taken this example. अब यहाँ पे जो है क्या क्या चीज दिमाग में रखना था. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाउ मेनी vertices are there? 1 2 3 4. That means 4 vertices are there. So if 4 vertices is there, that means 4 matrices. एक तो इनिशियल मैट्रिक्स होगा प्लस 4 मैट्रिक्स for D1, D2, D3 and D4 matrix. So now how that means, so how we'll find out the shortest path between every pair of shortest path. So D0, how to calculate D0? We know how to calculate D0. So D0, so 4 vertices, that's why 4 number of columns, 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4 rows. So number of columns and number of rows. Now we can easily we can find out the matrix. So for D0 matrix means initial matrix. So initial distance matrix. So initial distance matrix means directly we can calculate simply. Suppose 1 to 1 0, 1 to 2. Is there any direct path? If is there any direct path, then just we directly write the weight. So here 1 to 2 is directly path between 1 and 2. That's why here we have written 8. Now next 1 to 3. So 1 to 3, is there any direct path between 1 to 3? No. There is no any direct path between 1 and 3. That's why we have written infinite. Now 1 to 4, is there any direct path? Yes, 1 to 4 is a direct path, 1 to 4 and weight is 1. So that's why we have written 1. Now 2 to 1. So 2 to 1, is there any direct path between 2 to 1? Yes, now you check. 2 to 1, is there any direct path? No direct path. So that's why we have written here infinite. Now 2 to 0, 0. Now 2 to 3, is there any direct path between 2 to 3? 2 to 3, yes. So that's why you have written here 1. Now 2 to 4, is there any direct path between 2 to 4?
No. So that's why infinite. Similarly, 3 to 1. So 3 to 1, is there any direct path? Yes. So that's why we have written here 4. Just you try to follow me and see the block that is graph, and this one is a matrix. So this one is an initial matrix. So initial matrix means directly we can write. So 3 to 1, yes. So that's why, sorry. So now for 4 matrix, so 4 to 1, yes. 4 to 1, is there any direct path? No. That's why infinite. 4 to 2, is there any direct path? 4, now you see, check 4 to 2, yes. 4 to direct path and weight is 2. So that's why we have written here 2. Now 4 to 3, is there any direct path? 4 to 3, yes. 4 to 3 direct path. So and weight is 9. So that's why I have written 9. And 4 to 4, 0. Now this thing, I think this thing is clear to everyone. Now next, when you calculate D1, so when we calculate D1 matrix, so how to calculate D1 matrix, ये समझने का चीज है. So D1 matrix means, okay, so sorry for that. So now D1, so D1, जब D1 मैट्रिक्स बनाएंगे तब क्या देखना है? D1 मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे जो 1 वर्टिसेस है, जो हम लोग पाथ फाइंड आउट करेंगे, तो हमेशा कोशिश करेंगे भाया 1. भाया 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाया 1? सपोज इफ वांट टू मूव 3 to 2, देन कहाँ से जाएंगे ना, 3 to 1 होके 1 को पहले कोशिश करेंगे, इज देयर एनी डायरेक्ट पाथ बिटवीन भाया 1, then we choose this one, and after that we compare previous one, previous value, and current, which one is a shortest or smallest, so that value here will put. That means यहाँ पे 3 to 1 जाना है, तो 3 to 1 के जो वेट है, एक प्रीवियस वाला हमेशा फॉलो करना है. जैसे सपोज डी जीरो को हम लोग को हमेशा फॉलो करना है इस मैट्रिक्स को. सपोज 3 to 1 देखेंगे, तो 3 to 1 के लिए कितना है वेट? 4 है. अब जब हम लोग का अभी जो है क्या ऑब्जेक्टिव है ना, हमेशा 1 को फॉलो करके जाना है. सपोज आपको 3 to 4 जाना है, सो 3 to 4 जाने के लिए इज देयर एनी डायरेक्ट पाथ बिटवीन 3 to 4? नो. लेकिन इफ यू वांट टू मूव भाया 1, देन देयर इज अ पाथ. सो 3 to 1 पहले जाएंगे और 1 to 4. अगर 3 to 2 जाना है, सो 3 to 2 जाने के लिए आपको हमेशा देखना है कि 3 to 1 भाया 1 कुछ पाथ है क्या? यस. 3 to पहले 1 जाएंगे, 1 से लेके 2 जाएंगे. ठीक है. तो ये है मेन D1 मैट्रिक्स. तो D1 मैट्रिक्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, भाया 1. जैसे मूल जैसे हम लोग को यहाँ पे 3 जाना है, सपोज 4 to 3, तो 4 to 3 डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग को क्या देखना है ना, 4 to 1 एंड 1 to 3, इज देयर एनी पाथ? अगर होता तो पहले उसको हम लोग कैलकुलेट करते, उसमें से जो पहले और इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग. ठीक है. तो बेटर आप जो फॉलो करके देखते हैं कि अभी स्टार्ट करते हैं. सपोज यहाँ पे D1 मैट्रिक्स बना रहे, तो D1 मैट्रिक्स में अभी 1 to 1, सो 1 to 1, 0. नाउ 1 to 2, सो 1 to 2, सो 1 to 2, इज देयर एनी डायरेक्ट पाथ? एक्चुअली हम लोग क्या है कि 1 के लिए जो एज इट इज रहेगा, जो आप अगर चेक करके देखेंगे D0 मैट्रिक्स में, एक हो गया आपका दिस वन, दैट मीन्स ये वाला रो 1 कॉलम एंड 1 रो, वो सेम वैल्यू रहेगा. क्यों कि भाया 1 जा रहे हैं, तो 1 से ही तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन किया हुआ है, तो वो एज इट इज वैल्यू रहेगा. अपने अगर कैलकुलेशन करके भी देखेंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा वहाँ पे इस मैट्रिक्स में जो कॉलम में सेम ही रहेगा. ठीक है. लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं. तो अभी
सो नाउ 1 to 2, सो 1 to 2 वैल्यू क्या होगा 8 होगा. नाउ 1 to 3, सो 1 to 3 इज देयर एनी पाथ डायरेक्ट, इज देयर एनी डायरेक्ट पाथ, नो. सो दैट्स व्हाई क्या होगा इसका वैल्यू इनफाइनाइट. नाउ 1 to 4, सो 1 to 4, 1 to 4 यस डायरेक्ट पाथ, so that's why यहाँ पे 1 हो गया. now 2 to now 2 to 1, so 2 to 1 क्या है, is there any direct path, no, so यहाँ पे infinite होगा. now 2 to 0, so 2 to 2 0 होगा. now 2 to 3, 2 to 3 is there any direct path, yes, but हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि 2 to 1 and 1 to 3 ये क्या है. अगर यहाँ पे रहता तो हम लोग वो वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जो स्मॉलेस्ट होगा वो मिनिमम जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं. सो यहाँ पे 2 to 3, दैट मीन्स नाउ इज देयर एनी डायरेक्ट पाथ, यस 2 to 3 देयर इज अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन 2 to 3 एंड ये मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज इस पाथ को फॉलो करके देखना है हमें, हमेशा वो चेक करना है, लेकिन वो वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है. सो व्हिच वन इज अ मिनिमम, so this value is minimum, that's why here we have written 1. now next one 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 is there any direct path, पहले चेक करेंगे भाया 1, क्योंकि D1 मैट्रिक्स बना रहे हैं, D1 मैट्रिक्स मतलब हमेशा भाया 1 देखना है. तो 2 to 1 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लिखे, क्योंकि 2 to 4 भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर इनफाइनाइट. नाउ 3 to 1, so 3 to 1, yes 3 to 1, यहाँ पे 4 है इसका वेट, so that's why we have written 4. now 3 to 2, 3 to 2, लास्ट टाइम हम लोग क्या लिखे थे 3 to 2, जस्ट यू चेक हियर क्या लिखे थे, जो D0 मैट्रिक्स था इनिशियल मैट्रिक्स, तो हियर 3 to 2 का वैल्यू क्या था, 3 to 2 का वैल्यू क्या था D0 मैट्रिक्स में, D0 मैट्रिक्स में क्या था, एनीवन, यस जो D0 मैट्रिक्स था उसमें 3 to 2 का वैल्यू क्या था, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट, वेरी गुड. तो अब दोनों में जस्ट डिफरेंशिएट में करने के लिए समझने के बाद कि D0 मैट्रिक्स था वो इनिशियल मैट्रिक्स था, लेकिन D1 मैट्रिक्स में हमें देखना है कि भाया 1, D1 मीन्स यहाँ पे जो K का वैल्यू है 1, अब हमें हम लोग को हमेशा देखना है कि भाया 1 इज देयर एनी पाथ. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 to 2 डायरेक्ट पाथ नहीं था, इसलिए हम लोग D0 मैट्रिक्स में डायरेक्टली वी हैव रिटन इनफाइनाइट. बट नाउ इन केस ऑफ D1 मैट्रिक्स हमें देखना है कि भाया 1 इज देयर एनी पाथ, यस इज देयर एनी पाथ 2 पे Yes, sir. पहुंचने के लिए, यस. Yes, sir. 3 to 1 and 1 to 2, यस. सो 3 to 1 का वेट कितना है 4 प्लस और 1 to 2 कितना है 8. 8, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 12. एंड 12. प्रीवियस वन क्या था इनफाइनाइट, अगर डायरेक्ट पाथ अगर देखते हैं तो इनफाइनाइट, तो व्हिच वन इज अ मिनिमम, ऑब्वियसली दिस वन, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन यहाँ पे 12 लिखे. ठीक है, आप D0 मैट्रिक्स में अगर देखेंगे तो D0 मैट्रिक्स में 3 to 2 का वैल्यू इनफाइनाइट है, क्यों, उस टाइम हम भाया 1 नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी D1 मैट्रिक्स में हम भाया 1 देखेंगे. ठीक, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 12. नाउ 3 to 3 obviously 0. now 3 to 4, 3 to 4 अगर प्रीवियस अगर आप D0 मैट्रिक्स में देखेंगे तो उसमें देखना 3 to 4 कितना था, 3 to 4 Infinite. यस. बट नाउ D1 मैट्रिक्स में हमारे पास एक है कि हमें भाया 1 जाना है, सो 3 to 1 1 and 1 to and 1 to 4, यस. सो 3 to 1 and 1 to 4, so that's why कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 5, जो मिनिमम होगा, 5. यस. तो ये मिनिमम वैल्यू है, वो प्रीवियस वन इनफाइनाइट था,
तो अभी हम लोग का वैल्यू यहाँ पे 3 to 5 में 5 हो गया। नाउ 4 to 1 इनफाइनाइट, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है इसीलिए इनफाइनाइट। नाउ 4 to 2, तो 4 to 2 जो है हमें लेकिन चेक करना है कि भाया 1 भी, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या है इसका ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू इनफाइनाइट है। हमें कंपेयर करके देखना है, एंड 4 to 2 क्या है, 2 है, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा तो ऑब्वियसली ये मिनिमम वैल्यू है, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 2। ठीक। नाउ 4 to 3, 4 to 3 आपका कितना वैल्यू होगा ना, 9। क्यों, इधर से जब जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो मिनिमम कौन सा है ना, यही वाला मिनिमम है, तो पहले भी 9 ही था, अभी भी 9 ही है। 4 to 4 0। ठीक है, अभी हम लोग जो बनाएंगे वो है होगा आपका D2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, D1 मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख दिया। ठीक है, अब मैं D2 मैट्रिक्स इसी में बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग को ये इसको फॉलो करने में सुविधा होगी। तो अभी जो हम लोग बनाएंगे D2 मैट्रिक्स, तो जो D2 मैट्रिक्स बनाएंगे, अब हम यहाँ पे सबको एक काम करते हैं, इसको 0 मैंने हटा ही देते हैं, समझ में आएगा। इसमें इसका वैल्यू क्या था, D2 में आपका इसका वैल्यू 2 to 1 इनफाइनाइट। ओके, अब क्या करेंगे ना, D2 मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो D2 मैट्रिक्स में क्या होगा, मेन चीज ना, जो D2 मैट्रिक्स होगा आपका, D2 मैट्रिक्स में क्या होगा ना, भाया 2 हमें जाना है। दैट मीन्स हमें देखना है कि ये 2 को लेके, मतलब इसको भाया 2 हम यहाँ पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन जो भी है, आइदर 3 4 और ये। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 to 1 तो 0। नाउ 1 to 2, 1 to 2, तो 1 to 2 का वैल्यू यहाँ पे 8 ही होगा, लेकिन अभी जो देखना है 1 to 3, 1 to 3 का वैल्यू क्या होगा, 1 to 3, यस 9 ना, क्यों ना, पहले था, Yes. पहले इनफाइनाइट था। ठीक है, 2 to पहले क्या था, 1 to 3 डायरेक्ट कोई पाथ नहीं था। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग जो D2 मैट्रिक्स है, तो हमेशा हम इसको 2 वर्टिसेस होके ही जो है देखेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएंगे ना, 1 to 2 एंड 2 to 3, तो 1 to 2 8 प्लस 2 to 3 9। नाउ प्रीवियस वन, तो मिनिमम ऑफ दिस, तो मिनिमम अगर करेंगे तो व्हिच वन इज द मिनिमम ना, दिस वैल्यू इज मिनिमम, पहले इनफाइनाइट था, अभी यहाँ पे इसका वैल्यू 9 होगा। ओके, सो 1 to 4, तो 1 to 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 to 4, 1 to 4 का वैल्यू क्या होगा, 14. 1 to 4, सर 1। यस 1 ही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। नाउ अभी जो देखना है आपका 2 to 1 इनफाइनाइट है, 2 to 1 इनफाइनाइट है, 2 to 0 0। नाउ अब देखना है आपका 2 to 3, तो 2 to 3 भी आपका क्या होगा, 1 और 1 एक चीज मैं बताया था आपको, जो 2 नंबर ऑफ, ये जो 2 रोज है और 2 कॉलम, उसमें जो वैल्यू है एज इट इज रहेगा, क्यों कि हम ये वाया 2 होके जा रहे हैं, तो वो वैल्यू उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे 3 वाला करेंगे D3, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम जो है वो वैल्यू एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग को देखने का, तो 2 to 3 कितना हो जाएगा, 2 to 3 1 ही रहेगा, और ये इनफाइनाइट रहेगा। नाउ 3 to 1, 3 to 1, 4 सर। 3 to 1 4, वेरी गुड।
3 to 2, 3 to Infinite, sir. infinite or minimum. So which one is the minimum? Yes, sir. भाया 1 तो है, मतलब उसको 3 to 1 and 1 to 2 we can read. ठीक है, तो इंटरमीडिएट उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ पे पहले से 12 था, 12, इसलिए बोल रहे हैं प्रीवियस वन को हमें फॉलो करना है, D1. तो D1 में क्या था, इसका वैल्यू 12 था, तो फिर हमें और कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो D1 को फॉलो करना है. तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको 3 to 2 का जो वैल्यू मिनिमम ऑफ, तो मिनिमम वैल्यू पहले जो था 12, अभी यहाँ पे 3 to 2 डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है वाया 2, तो इनफाइनाइट. तो विच वन इज द मिनिमम, तो पहले जो था वही वाला, तो इसीलिए यहाँ पे 12 है. नाउ 3 to 3 0 हो जाएगा. नाउ 3 to 4, 3 to 4, so 3 to 4 क्या होगा? Sir, 5, sir. 5. यस, वेरी गुड. तो 5. 3 to 4 हो जाएगा आपका 5, 3 to 4 एंड दिस वन. अब 4 to 1, 4 to 1, Sir, 0. 4 to There 1 is no path, sir. Minimum. Infinite. इनफाइनाइट. 4 to 1 हो जाएगा आपका इनफाइनाइट. 4 to 2, ये तो 2 है ही है. 2, sir. नाउ अभी देखना है, अब जो और एक चीज मिलेगा अभी हम लोग को, 4 to 3, 4 to 9. 3 पहले था 9, लेकिन अभी हम लोग को जो D2 मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो D2 मैट्रिक्स में हम, मेरे पास और एक ऑप्शन है 4 to 2 एंड 2 to 3. 3. इसीलिए बोलते हैं ये जो है आपका ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट पाथ है 3, लेकिन भाया 2 जा रहे हैं, तो हम लोग को देखना है यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जा रहा है, 3. तो मिनिमम कौन सा वैल्यू, मिनिमम एक 4 to 3 डायरेक्टली पाथ है जो 9, मिनिमम ऑफ 9, ये, तो विच वन इज द मिनिमम, 4 to 2 and 2 Sir, to 3. 3. So that's why here we have written 3. Very good. And 4 to 4 0. So that means now D3 मैट्रिक्स, जो D2 मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ पे हो गया. कंट्रोल D, और यहाँ पे इसको हम कॉपी करके रख देते हैं, कंट्रोल D. नाउ D3 मैट्रिक्स है ना. अब D3 मैट्रिक्स मतलब क्या होगा ना, D3 मैट्रिक्स का मतलब है कि हमें जो इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा ना, इंटरमीडिएट हमें 3 से देखना है. 3, सपोज यहाँ पे आपको जाना है 4 to 4, 4 to 3, तो यहाँ पे हम लोग को हमेशा क्या करके देखना है ना, भाया 3 जाना है. लेट्स सी हम लोग करते हैं. और एक चीज, यहाँ पे D3 बना रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ के 3 नंबर ऑफ जो रोज है और 3 नंबर कॉलम जो है एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो 3 नंबर रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम एज इट इज रहेगा. नाउ सो D3, so now 1 to 1 0, 1 to 2 8, 1 to 3 कितना होगा, 1 to 3, 1 to 3 9, sir. 9, very good. And this one is a 4 1. Now 2 to 1, अब देखो 2 to 1 में क्या होगा, 2 to 1, 2 to 1 मीन्स अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, D3. तो D3 मीन्स अभी हम लोग के पास ऑप्शन है भाया 3, so 2 to 3 and 3 to 1. 14, sir. Yes, 5. 5. So 2 to 3 1 and 3 to 1 4. So that means now पहले कितना था, इनफाइनाइट था, है ना. तो 2 to 1 के लिए हम लोग को उस टाइम अभी तक जो भी कैलकुलेट कर रहे थे इनफाइनाइट हो रहा था, लेकिन अभी जब आया 3, तो नाउ मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है ना, 5. So now value 2 to 3 and 3 to 1. So now value is 5. Yes. Yes, sir. Sorry. Okay. Very good. So now 2 to 2 0. Now 2 to 3. 2 to 3
2 to 3, 2 to 3 1 sir. 1, very good. And 2 to 4, 2 to 4, Sir, there is no direct part, but sir, we can consider over here, sir, 2 to 3 and 3 to 4. yes, so 2 to 3, then 3 to 1 and 1 to 4. Yes, sir. So that's why now value 1, 2 to Value 1 will be 1, sir, 1 4 and then again 1. Sir, the total value is 6. total value is 6. तो वेरी गुड. तो ये जो डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि जैसे D2 मैट्रिक्स हुआ, अब D3 मैट्रिक्स में हम लोग को क्या एक्चुअल में, तो ये जो है कैलकुलेशन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. तो अभी जो है इनके लिए देखो एक पाथ निकल गया 2 to 3, 3 to 1 एंड 1 to 4. तो 1 plus 4 plus 1, दैट मीन्स नाउ मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 6. ओके, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखने का कोई जरूरत नहीं है. 3 to, ये एज इट इज वैल्यू रह जाएगा. ठीक है, नाउ चेक करते हैं 4 to 1. सो 4 to 1 में क्या होगा वैल्यू? 4 to 1. इज देयर एनी डायरेक्ट पाथ? नो. बट No, sir, infinite. नो डायरेक्ट पाथ, बट नाउ वी कैन मूव थ्रू. 3 to 1 and 1 to 4. That means now we have option. One option is 4 to 2, 2 to 3, and 3 to 1, and 1 to 4. Another option we have 4 to 3 and 3 to, and 3 to 1. 1, and 1 to 4. Which one is a 1 to minimum? 4. So here minimum value कौन सा minimum हो रहा है? Sir, 3 to 1 and 1 to 4. नहीं, देखो 4 to 2 पहले आएंगे. 4 to 2 2 हो गया. 2 to 3 कितना हो जाएगा? 3. and now 3 to 4. ठीक है, Yes, sir, 8. ठीक है ना. तो अभी 4 to 1 के लिए कितना हो जाएगा? अभी हम लोग कर रहे हैं 4 to 1, तो अभी वैल्यू कितना हो जाएगा उसका? 7. यस, 8, sir, 8. 8, sir. नहीं, हमें तो 4 to 1 जाना है ना. Sir, 4 to 1. so but we are considering the parts are from 4 to 2 and 2 to 3 and 3 to sir 1 and 1 to 4, na sir. नहीं, हमें तो 4 to 1 तक जाना है ना. 1 अभी 4 to 4 भी नहीं दे, हमें तो 4 to 1 जाना है ना. Okay, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. तो यहाँ पे वैल्यू इसका 7 हो जाएगा. ठीक है, 4 to 2 तो डायरेक्ट पाथ है, तो यहाँ पे इसका 2 हो गया. 4 to 3, 4 to 3 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे प्रीवियस वन. तो 4 to 2 एंड 2 to 3, तो नाउ वैल्यू 3 एंड 4 to 4 0. ठीक, तो ये हो गया आपका D3 मैट्रिक्स. अगेन आई एम रिपीट, आपको हमेशा प्रीवियस वन को फॉलो करना है, D2 मैट्रिक्स को. अब यहाँ पे D3 मैट्रिक्स यहाँ पे डन. नाउ लास्ट वन इज अ D4 मैट्रिक्स. तो D4 मैट्रिक्स में अभी देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं D4 मैट्रिक्स. तो D4 मैट्रिक्स में 4 नंबर जो है रोज एंड 4 नंबर कॉलम एज इट इज रह जाएगा. अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है. ओके, सो नाउ 1 to 2, 1 to 2, 8, sir. 1 to 2 8. Is there any path? Because now we can, that means here we are considering 4 because D4 matrix, so we can move. Sir, but we have another part, sir, 1 to 4 and 4 to 2, and that will be minimum, sir, 3. Yes, so that's why. So 1 to, if you want to move 1 to 2, 1 to 2, so we have one option is directly you can move 1 to 2, and another option is 1 to 4 and 4 to 2. Yes, so that means now value कितना होगा? मिनिमम 1. 3, sir. Yes, 3. यही तो है इस एल्गोरिदम का. तो देखो कैसे कैसे हम लोग को जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग निकाल रहे हैं. ठीक है, अभी तक 8 था, अभी लेकिन देखो और एक रास्ता निकल गया. इसमें हम लोग का जो है जो मिनिमम है वो वैल्यू हम लोग ले लिए.
सर 9 सर, for 1 to 3 9. अच्छा अभी देखो 1 to 3 इसका वैल्यू क्या होगा? 1 to 3 क्या होगा? पहले 9 था लेकिन अभी वी हैव अनदर ऑप्शन 4 sir. 1 to 4, 4 to 2 and 2 to 3. तो नाउ वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? मिनिमम और भी कम हो जाएगा इसका वैल्यू 4. 4. यस यस यस, देख रहे हैं किस तरह से वैल्यू को हम लोग एकदम शॉर्टेस्ट जो पाथ फाइंड आउट हो रहा है किस तरह से. सो नेक्स्ट वन देखो 5. ठीक है, अब 2 to 1, 2 to 1 तो इसका वैल्यू जो है एज इट इज रहेगा, मिनिमम यही है. 2 to 0, नाउ 2 to 3, 2 to 3 यही मिनिमम है. 2 to 4 यही मिनिमम है. नाउ 3, सो 3 में देखो 3 to 1, 3 to 1, 3 to 1 आपका हो जाएगा 4. ओके, बट 3 to 2 देखिए तो 3 to 2, 3 to 2 है कुछ. प्रीवियस वन था 12 12, अभी हम लोग के पास थ्रू 4 हम लोग जा सकते हैं. तो देखो आप यहाँ से 3 to 2, so that means 3 7 to sir, 1 sir. and 7. 1 to 1 4, to 4 and 4 to 2. 4 to 2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 7 sir. यस वेरी गुड. तो यहाँ पे आपका वैल्यू 7 हो जाएगा. दिस वन इज अ 0, इतना ही रहेगा. एंड 3 to 4 हो जाएगा आपका. 3 to 4 आपका 5 ही रहेगा. 5 sir. यस. सो फाइनली अभी जो हुआ आपका एक्चुअल में, अभी यहाँ पे हम लोग जो फाइनली जो वैल्यू मिला, अब यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ जो है निकाल दिए. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस वन. अभी मैं एकदम पूरा एग्जांपल लेके बताया था. आप एकदम अगर पूरा फॉर्मूला में जाएंगे तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. हम अभी जो ऑलरेडी डायरेक्ट बताएं, इसमें डायरेक्ट भी बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है. अब इसको हम थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं. अब मैंने शेयर कर दूंगा इन नोट्स को. ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लेना. लेकिन फॉर्मूला वही है, देखो यहाँ पे मिनिमम डी आई जे के माइनस 1 एंड डी जे के माइनस 1 प्लस डी के जे, जो इंटरमीडिएट हम लोग कर रहे थे वही चीज है हमेशा. डी जे के मतलब वो जो हम लोग पहले D0 इनिशियल, नाउ D1, D2, D3 ऐसा करके. तो के का वैल्यू 0 हुआ एक बार, उसके बाद के का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो D1 मैट्रिक्स निकाल रहे हैं. तो इंडिविजुअल वो कैलकुलेट कर करके यहाँ पे वैल्यू मैट्रिक्स बनाए हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला देके. तो इसको आप लोग अपना खुद से एक बार ट्राई करना एक एग्जाम्पल लेके, तो आई थिंक वो कर पाएंगे. तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला. ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस वन डी जे के, दैट इज प्रीवियस वन जो हम लोग बनाए थे. इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस D1 को फॉलो करेंगे जब D2 बनाएंगे मैट्रिक्स. ठीक है, तो ठीक है, टाइम आई थिंक ऑलमोस्ट डन है. तो मैं